NIOS, why NIOS is important and how it is very suitable for the current generation and it is the need of the current hours. So we will be focusing on the advantages and the disadvantages of NIOS. So right now there is a trend in the market. Anish sir always tells us that the future of schooling will be homeschooling and no schooling. So generally these days the students are focusing on competitive exam rather than the studies which are going on school. So because schools they actually discipline uh, the things focusing on the education and everything. Those things are also important, but there we have lots of variety of students which requires a lot of different approach in studies. That is why we have this particular open schooling system called NIOS. The full form of NIOS is National Institute of Open Schooling. So this particular system is very nice for those students who are focusing on competitive exams and these things, because they can have flexibility, and they can have optimized their timing according to their needs. They can study at any time and they can give exam from their home. Schools, attending school and doing those busy hours are not important, because generally it is seen that schools are going for 6 hours, and it takes a lot of energy and time for the students to attend the schools and follow their disciplines and schedule. So that is why NIOS is a very good and strategic approach for those kinds of students. So if somebody is planning for competitive exam and their approach, and it is not possible for them to attend the busy lectures and those things, those students can go for. Assalamualaikum, good afternoon, good morning. This is Anish sir here. सर आवाज आ रही है क्या? जी सर, आवाज़ आ रही है। स्टार्ट करें? हाँ सर, स्टार्ट किया मैं, अभी जस्ट 1-2 मिनट हुआ है। हाँ, तो वही बताना चाह रहा, हम लोग पार्टिसिपेंट्स को बताना चाह रहे हैं कि एनआईएस का इम्पोर्टेंस क्या है। अब्रार सर है ना? हम जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, एनआईएस का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। सबसे पहली बात तो अभी जो नया जनरेशन जेड के बच्चों को पढ़ाना है ना, तो जनरेशन जेड के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं और मेरे से जितने भी करियर काउंसलर है, वो लोग सब यही बोल रहे हैं कि आपको साइंस से मैथ्स लेना पड़ेगा, आपको कॉमर्स से इकोनॉमिक्स लेना पड़ेगा, और आपको आर्ट्स से साइकोलॉजी लेना पड़ेगा। तो जो बच्चे ऐसा कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं वही बच्चा आगे जाएगा। इंडिया में आईजीसीएसई में कुछ हद तक जो है ये कॉम्बिनेशन मिल सकता, लेकिन वो कॉस्टली होता है। लेकिन एनआईएस में और इग्नो में आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। दोबारा बोलता हूँ, आपको मैथ्स से क्या लेना पड़ेगा? चाहे मैथ्स, साइंस से मैथ्स लेना पड़ेगा, कॉमर्स से इकोनॉमिक्स लेना पड़ेगा, और यू हैव टू टेक psychology from the art section. If you take such kind of combination, then only your child will be able to do a good career. There are a lot of careers, whether you take art, science, or commerce. So that kind of combination is possible only when you are doing that by taking subjects from NIS. Other than IGCSE board, no board is giving this particular type of combination. So you have to be aware of such kind of combination. This is what I'm trying to do. So this is the first slide where we are talking about NIS exams. So how many of you are aware of NIS? All of you are aware? You can write in the chat box if you want to ask something. No, Siva. So how many of you are aware of NIS or IGNO? Or are you also aware of I think international level पे जिसका नाम है CISCE? चैट बॉक्स में अगर आप CISC लिखा तो बहुत अच्छा रहेगा। IGNO का स्पेलिंग है IGNOU और CISCE करके भी है, वो इंटरनेशनल लेवल का है। तो जो बच्चे आईटी में जॉब करते हैं और वो बाहर जाना चाहते हैं, they can do that CISC also.
CISC और बाद में E भी है सर लास्ट में। चैट बॉक्स में कोई लिखा तो अच्छा है। या तो इसके बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, कि आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है वो, लेकिन अभी NIS के बारे में बात करेंगे। सर आपका पेन हटाओ ना, मेरे को PPT नहीं दिख रहा। हाँ, तो 3 चीज होता है, होम स्कूलिंग होता है, नो स्कूलिंग होता है और अनस्कूलिंग होता है। तो कौन बताएगा व्हाट इज होम स्कूलिंग और व्हाट इज नो स्कूलिंग एंड व्हाट इज अनस्कूलिंग? और एक चीज डमी लर्निंग, रीलर्निंग और अनलर्निंग। अभी होम स्कूलिंग में मतलब बच्चों को घर में बिठा के पढ़ाना, स्कूल में भेजना ही नहीं। तो जो भी सब्जेक्ट का स्पेशलिटी लोग रहते हैं, बड़े बड़े सोसाइटी में पुणे में ऐसा ही हो रहा, सब्जेक्ट स्पेशलाइज लोग आके पढ़ाते हैं क्लब हाउस में, अपने ही क्लब में पढ़ना। क्योंकि बैंगलोर बोलो, पुणे बोलो, हमारे आने जाने में 1 घंटा जाता, बच्चा ड्रेन आउट होता, उसका जो एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन है, उसका जो क्वेश्चन है, उसका जो इमोशनल क्वेश्चन है, ये ड्रेन हो जाता, जिसकी वजह से वो एडवर्सिटी क्वेश्चन पे आ जाता, प्रॉब्लम हो जाता। अगर उसका स्कूल ही उसके सोसाइटी में आ गया, उसके लिए बहुत आसान है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, क्लब हाउस में कैमरा भी रहता है, बच्चों को अपने गेटेड सोसाइटी के बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, और वो जो स्कूल में जाने आने के टाइम में वो खेल सकता है, वो म्यूजिक सीख सकता है, वो एक्टिविटीज कर सकता है, स्पोर्ट्स खेल सकता है। आजकल स्पोर्ट्स जो है पढ़ाई से भारी है, आई रिपीट, स्पोर्ट्स जो है पढ़ाई से भारी है, आई रिपीट, स्पोर्ट्स जो है वो एकेडमिक्स से भारी है। ये होम स्कूलिंग में हो सकता है। होम स्कूलिंग में अगर अपने बच्चों को 4 चीज पढ़ाया, मैथ्स पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, एप्टीट्यूड पढ़ाया और साइकोलॉजी पढ़ाया, तो आपको अपने बच्चों को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप NIS से 10th में बिठा सकते हैं। राइट मारना, हाँ राइट मारो, राइट मारो, बिंदास राइट, नहीं सीधा लगे, हाँ मामा रहेगा तो ठीक है, तो बच जाए, मारो मारो बिंदास। दूसरा, नो स्कूलिंग मतलब बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते, आप उसको स्किल्स पढ़ाए, उसको बियॉन्ड टेक्स्ट बुक और बियॉन्ड क्लासरूम लेके जाए, ट्रैवल कराए, वो कंसेप्ट अभी इंडिया में नहीं है, सीधा वो चीजें इंडिया में आई नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी चीजें ला सकते हैं हम। नो स्कूलिंग, अनस्कूलिंग मतलब बच्चों को स्कूल से निकाल के इंटीग्रेटेड फॉर्म में लाए, स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए पढ़ाए। हमारे महाराष्ट्र में ट्रेंड है, 3rd 4th स्टैंडर्ड से बच्चा नवोदय के लिए पढ़ता है, स्कूल जाता ही नहीं है, कोई डबी स्कूल में जाता है और एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ता है। आगे सर, दूसरा, नवोदय पढ़ेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के लिए पढ़ेगा। नवोदय तो पूरे इंडिया में लोग दे सकते हैं, 5th में होता है, उसके लिए क्लासेस ज्वाइन कर दे, कोचिंग क्लास में ही स्कूल इंटीग्रेशन होता है। वो एक डिस्ट्रिक्ट में आप टॉप करेंगे वो उसके बारे में पता चलता है। दूसरा जो है आपका शहरी स्कूल है, हर स्टेट में 2 है, महाराष्ट्र में अभी 2 हो गया, हर स्टेट में एक है। बैंगलोर में तो, कर्नाटक में तो बहुत पहले से 2 है, बीजापुर में भी और कोटक में भी है, और दोनों भी भारी है, उनका 400 एकड़ में कैंपस है। उस स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, स्कूल की पढ़ाई से बच्चे नहीं पास होते। तीसरा जो है, लोगों को बताने, ये RMS है, ये भी बैंगलोर में है, बेलगाम में है, कर्नाटक में 2 है, बाकी अजमेर में है, शिमला में है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बोलते हैं, इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, यहाँ तो सिर्फ सिविलियन को 30% कोटा है। अच्छा, उसके आगे RIMC है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये RIMC लिखो असद सर, एक स्टेट से एक ही बच्चा जाता है, एक लड़का एक लड़की। अगर उसमें दाखिला लेना है आपको, 6 के बच्चे को 8 का सिलेबस पढ़ाना पड़ता है, जबरदस्त है दुनिया में, इससे कोई टफ एग्जाम है नहीं। और गाँव काव करके चाइना बोलता है हमारा एग्जाम बहुत टफ है, उससे भी टफ है। कोरियन वाले बोलते सुनुंग, $20 बिलियन का इंडस्ट्री है, SUNUENG, सुनुंग, अंदर लो, तो सुनुंग से भी टफ है ये। तो ये ऐसे सारे चीजों को पढ़ने के लिए, अंदर लो ना, अंदर, हाँ बंद किया गया, ठीक है छोड़ दो। तो ये सारी चीजें पढ़ने के लिए आपको नो स्कूलिंग करना पड़ता, अनस्कूलिंग करना पड़ता। तो व्हाट इज नो स्कूलिंग, व्हाट इज होम स्कूलिंग और व्हाट इज अनस्कूलिंग, ये समझना पड़ेगा। असद सर कंटिन्यू करो, असद सर मैं वापस ज्वाइन कर दूं। असद सर,
Okay, sir. असद Okay. सर, Okay, sir. Thank you, sir. So we were talking about there are plenty of other students which are built different, which have planned their career differently. So for those, NIOS will be a very nice idea. Somebody has written, my son is doing HIVs. So if our child is doing HIVs, so he cannot attend the busy schedules of schools. So this particular NIOS program will be very beneficial for those students which are doing HIVs or other planning for other competitive exams. So आज के लेक्चर में हमें उसी के ऊपर फोकस करना है. टुडे वी विल फोकस ऑन why NIOS and which type of student will be for which type of students NIOS will be better. So moving to the next this. So generally we know about CBSE and our state board syllabus, but this particular NIOS general people don't know about it. So इसके लिए हम आज के सेशन में हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे. It is a program given by government of India, the world's largest open schooling system. So NIOS जो होता है वो कंप्लीट पैरिटी बेस्ड होता है, और ऑल नेशनल स्टेट बोर्ड्स और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, और बाकी आगे जो आपके ग्रेजुएशन में जहाँ भी आप कॉलेजेस में जो आप ये करते हो, इट इज इक्विवेलेंट टू दैट. प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, somebody is there is a noise coming in the background. हाँ, ओके. सो CIC ये जो काउंसिल फॉर इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होता है, NIOS और CBSE का जो सिलेबस होता है, सिलेबस के बारे में भी हम बात करेंगे. NIOS का जो सिलेबस होता है थोड़ा सा लाइटर मोड में होता है. Like CBSE syllabus is very difficult and it is in depth. All the subjects are taught in depth. But NIOS में जो syllabus होता है, अगर आप देखोगे even schooling level पर भी और higher secondary level पर भी, for 11th and 12th standard, the syllabus is very lighter compared to CBSE and our state board syllabus. So that is why students find it very easy to score a good marks in NIOS, and obviously it is equivalent for CBSE and all types of state boards. So our student will be eligible. It is not like that कि अगर हमने NIOS ले लिया तो वो आगे किसी ग्रेजुएशन कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता. It's completely equivalent. So it will be very nice for madrasa students and those students who cannot attend the schools and parents don't want to send them in school, because there are challenges that students find in schools. So if you want to if our child wants to stay at home and study at home, then we can take NIOS. Okay. So I have compared the traditional schooling system and NIOS advantages in this table. For example, you can see daily 7 to 8 hour attendance is compulsory in all schools, and schools focus very much about the disciplines. So, but in NIOS we get advantage of 100% customizable study hours. There is no compulsion for the child to wake up early and go school, because new generation don't want to attend the school, and they want flexibility. So that is why daily schedule we have customizable study hours, and our child can study at home at any time. Okay. The second advantage we get is accelerated or adjusted individual capability. So if somebody NIOS also gives you the advantage of choosing the subject at your wish. So आप अपने हिसाब से, अपने preference के हिसाब से आप subject भी choose कर सकते हो. There are some limitations which we can discuss according to the need of the child. Okay. But जितना हमारे बोर्ड में सिलेबस चॉइस नहीं दिया हुआ, उससे ज़्यादा चॉइस हमें NIOS के अंदर मिलती है. ओके. सो एग्ज़ाम साइकिल में स्कूल आपने देखा होगा कि रिजिड एनुअल प्रेशर होता है. every 3 months they take exams and give the results. So these days students find it very difficult if they score less marks in exam. They get emotionally and mentally बहुत ज़्यादा stress आ जाता है उनको. So in NIOS on demand और by annual flexibility हो सकती है. We can choose
अकॉर्डिंग टू मतलब उसमें बहुत सारे डेज मिल जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है काइंड्स ऑफ, क्योंकि एनआईएस मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम ले सकता है इस साल के अंदर. सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी वी कैन गेट हियर. Yes, yes. आजकल these days this is a very big problem for the students. They don't have attention span. Every reel देखने का ज़माना है, तो every 10 to 15 second they want a change. तो अनीस सर का डायलॉग है, दो सब कुछ 2 मिनट में चाहिए आजकल लोगों को. That is why they cannot pay attention by sitting on a bench for 7 to 8 hours, जैसा कि स्कूल में होता है. तो इसके लिए NIOS is a very nice idea. We can take their classes at home, and we can guide our student under our watch. So board exam का जो routine होता है, we know board exams are, marks of the board exams are not that much important, because all the admissions and programs are happening for the competitive exam. So generally क्या होता है, अगर हम लोग if we send the child for 7 to 8 hours in school, they cannot focus on studying competitive exams. So for those sincere students which are focused towards their competitive exam like NEET and JEE or UPSC, so they can opt for NIS. ठीक है. हाँ, यस, क्लिक पर हर चीज़ होना है उनको, सही बात है. आर्किटेक्टिंग योर एजुकेशनल पाथवे, इसके अंदर मैंने समझाया, देखो सेकेंडरी लेवल पर भी और हायर सेकेंडरी लेवल पर भी, एंड इवन फॉर द वैकेशनल प्रोग्राम ऑल्सो वी कैन ऑप्ट फॉर NIS. इंडस्ट्री गेन स्किल्स भी हम लोग इसके अंदर कुछ NIS के अंदर प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो, फॉर एग्जांपल हम लोग 11-12 में इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं और इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट ले सकते हैं, और मैंने जैसे बताया बहुत सारे सब्जेक्ट के ऑप्शंस है जिसमें हम लोग स्किल पर भी बच्चों की फोकस कर सकते हैं. इफ somebody wants to build their career in electrical, so he can choose the subject based on their interest. Okay, तो that is the एडवांटेज हियर, बिकॉज हमारे बोर्ड्स के अंदर कैसा होता है, एक रिजिड लाइन ड्रॉ कर दी जाती है कि यू कैनॉट चूज द सब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर साइंस. बट इन NIS यू कैन इवन चूज, जैसा कि अनीस सर ने अभी बताया कि आर्ट्स से हम लोगों को एक सब्जेक्ट लेना होगा इकोनॉमिक्स. अगर कोई बच्चा बहुत काबिल है और वो सच में एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना चाह रहा है, सो आपको उनको तीनों सब्जेक्ट से कुछ पढ़ाना पड़ेगा. जैसे सर ने बताया, साइंस से हमें मैथ्स लेना होगा, कॉमर्स से हमें कॉमर्स से हमें अकाउंट्स लेना होगा, और आर्ट्स से हमें इकोनॉमिक्स लेना होगा. सो अगर ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, एंड ऑल द स्किल्स, इंपॉर्टेंट स्किल्स, ही कैन ऑप्ट फॉर दैट. ओके, एलिजिबिलिटी क्या होती है और 2026 में एडमिशन जर्नी कैसी रहेगी, उसके लिए यहाँ पर मैंने ये बताया है. फॉर एग्जांपल NIS के अंदर एज ग्रुप जो होता है 14, एटलीस्ट 14 ईयर्स ऑफ एज इज़ रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर 10th क्लास. 15 प्लस एज होती है उसको 11th और 12th के अंदर एडमिशन लेने के लिए. सो यस, ऑब्वियसली एज इज़ इम्पॉर्टेंट. एज ग्रुप के हिसाब से आपका एडमिशन होगा. देन यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ ऑन NIS पोर्टल. उसकी पर्टिकुलर मतलब गूगल पर वेबसाइट है. अगर आपने NIS 2026 पोर्टल लिखा ना, तो फर्स्ट लिंक विल बी ओपन, so that you can digitally register yourself for the admission in NIS. Okay, for the admission process, if you want, we can also guide you. ठीक है ना, आप अगर हमें बोलेंगे तो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं. एग्ज़ाम सेंटर में सिटी का ऑप्शन होता है. वी कैन चूज़ सिटीज़ ऑन द एडमिट कार्ड प्रोसेस. मतलब एग्ज़ाम से कुछ महीनों पहले आपको एडमिट कार्ड के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन करना होता है. उसके लिए यू कैन चूज़ द सेंटर फॉर दैट. तो सेंटर तो नहीं चूज़ कर सकते, बट सिटी चूज़ कर सकते हैं आप लोग. तो बाय गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर सेंटर दे हैव अलॉटेड यू कैन गिव योर एग्ज़ाम. ओके, चैट बॉक्स में आप लोग मुझसे और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव डाउट इन एनी टाइम. सब्जेक्ट सिलेक्शन, जैसा कि मैंने बताया, सब्जेक्ट सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा NIS ने ऑप्शंस दे रखा है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रखा है. इसके ऊपर भी एक डिटेल टॉक हो सकती है. अगर बच्चा
जैसे फॉर एग्जांपल सम स्टूडेंट डोंट लाइक हिस्ट्री एंड पॉलिटी, सो वो बच्चा हिस्ट्री पॉलिटी को ड्रॉप कर सकता है इवन एट द 10th स्टैंडर्ड लेवल। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ साइंस को पसंद करते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी एंड लैंग्वेजेस में ऑप्शंस चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो चूज द सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द NIOS terms and conditions. फॉर प्राइमरी स्कूल किड्स व्हाट आर द ऑप्शंस? प्राइमरी स्कूल किड्स के लिए भी बहुत सारे उन्होंने ऑप्शंस दे रखा है, बट प्राइमरी जनरली देखा गया कि प्राइमरी किड्स के लिए ज़्यादातर होम स्कूलिंग के लिए लोग आजकल ऑप्ट नहीं हो रहे, बिकॉज सोशल लाइफ ऑफ द स्टूडेंट विल बी टैम्पर्ड व्हेन you choose homeschooling for the primary kids. So schooling is important for the primary kids. That is my suggestion. अगर बच्चे को घर पर वो माहौल मिल पा रहा है, घर पर वो हम environment प्रोवाइड कर पा रहे, then you can opt for NIOS. NIOS is generally designed and it is opted when the student want to study at home. ठीक है ना? सो अगर घर पर हम लोग वो environment प्रोवाइड कर पा रहे at the basic level, first standard, second standard, third standard level, then you can opt for primary. How about the student entering in grade 1? Okay, we can also opt for grade 1 because there are some madrasa students and HIF student, जैसे कि मैंने बताया, if somebody wants to study at madrasa and साथ में उसको मतलब schooling भी करना है, तो then we can opt for primary schooling as well. ठीक है ना? grade 1 से even for the kindergarten के भी options है, वो भी आप कर सकते हो. यस, डायरेक्टली 9th में भी एडमिशन होता है. आई एम 15 प्लस एज इज ओके. इवन इफ यू आर डूइंग हिफ्ज, यस यू कैन चूज 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड डायरेक्टली, बिकॉज यू आर अलाउड. 14 प्लस है तो वो 10th में डायरेक्टली एडमिशन ले सकता है. एग्जैक्टली ये एक एनर्जेटिक, आजकल चाइल्ड्स बहुत एनर्जेटिक है. मैंने कहा ना, अटेंशन स्पैन इज़ वेरी स्मॉल. जैसे कि हम लोग 8 आवर्स तक बच्चों के साथ रहते हैं, तो बच्चों को अटेंशन स्पैन बहुत ज़रूरी होता है. वो उसको कैच करना टीचर्स का एक स्किल है, लेकिन वो फिर भी आजकल अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है. तो इसके लिए NIOS लेकर के हम लोग घर पर बच्चों को अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग के हिसाब से पढ़ाया जा सकता है. देयर आर ऑनलाइन ट्यूशंस एंड ऑप्शंस थ्रू विच वी कैन टीच द स्टूडेंट्स. ओके, तो जो those kids who are already admitted for 10th standard, then we cannot do it. मतलब अब उसका तो मुझे देखना पड़ेगा. उसके लिए तो अब वहाँ से एडमिशन निकाल नहीं सकते. सो हो सकता है डायरेक्टली हम लोग NIOS में एडमिशन ले लें, लेकिन ये एकेडमिक ईयर के पहले करना होता है. तो एडमिशन प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन इन NIOS, बट वो स्कूल से निकालने देंगे कि नहीं वो देखना पड़ेगा हमें, वो दैट स्कूल अलाउ और नॉट. व्हाट आर द सब्जेक्ट ऑप्शंस फॉर ग्रेड 2? ग्रेड 2 के लिए वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल है, मतलब विच सब्जेक्ट्स आर फ्लेक्सिबल. तो ग्रेड 2 के लिए आप देख लो, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होगा कंपलसरी, एंड इकोनॉमिक्स होगा, EVS जिसको हम लोग कहते हैं, सॉरी इकोनॉमिक्स नहीं, EVS होगा. और भी सब वेबसाइट पर आपको NIOS पोर्टल के ऊपर सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. तो ग्रेड 2 के लिए वो सारे सब्जेक्ट कंपल्शन होगा, और फ्लेक्सिबिलिटी भी है थोड़ी बहुत. ठीक है ना? जैसे एक सब्जेक्ट इंग्लिश है और एक सब्जेक्ट मैथ्स है और एक EVS है, ग्रेड 2 के लिए इम्पोर्टेंट. होम स्कूलिंग सेंटर बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. ये NIOS के लिए ना बहुत सारे आपको, अगर वेबसाइट पर आप देखोगे ना, तो उसके ऊपर एजेंट्स मिल जाएंगे जिनको आप कॉल करके बुला करके आप सेंटर ले सकते हो. अभी हमारे पास एक मुफ्ती तौफीक साहब आए थे, उन्होंने रत्नागिरी के अंदर एक सेंटर लिया है NIOS का. तो वो मदरतुस सुफ़ा चलाते, वो हिफ्ज़ करते ना, तो उनके बच्चे हिफ्ज़ करते, तो उन्होंने अपना एक NIOS का सेंटर ले लिया है. तो पैरेलली हम लोग 2-3 घंटा बच्चों को पढ़ा दिया ना, तो दैट विल बी इनफ फॉर द हिफ्ज़ स्टूडेंट. तो वही मुफ्ती साहब बता रहे थे कि हम बस 3 घंटा पढ़ाते बच्चों को, द रिमेनिंग टाइम भी विल बी यूटिलाइज फॉर अदर थिंग्स. मतलब उनका जो शेड्यूल है, बच्चों को हिफ्ज़ करवाना, बच्चों का नाजरा लेना, उसके अंदर जाता है वो. How could a school carry on the class-wise NIOS program?
Yes, regional language will also be there. Malayalam is also there. Tamil is also there. Obviously, these languages are also an option in NIS. You can go for that. मलयालम भी मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ मलयालम थर्ड स्टैंडर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड से एक ऑप्शन मिल जाता है आपको मलयालम लैंग्वेज का सिलेबस एंड बुक्स पे PDF पैट एग्जाम पैटर्न एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. सो प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर. हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर तो यहाँ पर मेंशन है PPT में, मैं एंड में दे भी दूंगा आपको. अबरार सर के पास भी है. यू कैन कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट NIS. ओके. मटेरियल, राइटिंग एग्ज़ाम्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन. आप अमेज़ॉन से NIS के बुक्स मंगा सकते हो. हार्ड कॉपी इफ़ यू वांट हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हो. PDFs आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. NIS पोर्टल पर PDFs भी अवेलेबल. यू कैन सी ऑल्सो सिलेबस अगर आपको देखना है तो. जनरली देखा है कि हमारे पास जो 11-12 के बच्चे नीट और JEE के लिए प्लान करते हैं, वो NIS अगर उनको दिला दो तो उनका मतलब स्कूल का टेंशन ख़त्म हो जाता है. Because these days government is restricting a lot. There is a lot of restrictions for the schools for the attendance pattern. मतलब पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल नहीं भी जाते तो चलता था, लेकिन अभी आजकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर आ गया स्कूल की तरफ से. तो अटेंडेंस इज़ कंपलसरी दीज डेज. एटलीस्ट 80% अटेंडेंस इज़ कंपलसरी in our area. So that is a challenge which can be overcome using an NIS program. आपका क्वेश्चन नहीं समझा. आई शुड नॉट डू एडमिशन इन 9th and 10th डायरेक्टली. इफ़ पेरेंट्स आर वर्किंग देन ट्यूशन कैन बी हेल्पफुल. यस, ऑब्वियसली. जैसे आजकल ज़्यादातर हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो IT बैकग्राउंड जिन पेरेंट्स का होता है, दे प्रेफर NIS बिकॉज दे कैन टीच द स्टूडेंट्स एट होम. हमारे यहाँ पर एक एरिया है पूना के अंदर, वो हिंजेवाड़ी कहते हैं उसको, IT हब है. इन दैट एरिया NIS इज़ वेरी फ्रीक्वेंट और स्टूडेंट टेक NIS देयर. अनस्कूलिंग, होम स्कूलिंग जो एजुकेशनल पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाह रहे क्योंकि स्कूल्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं, तो उनके लिए NIS इज़ अ गुड प्रोग्राम. सर, हाउ कुड अ स्कूल कैरी क्लास वाइज NIS प्रोग्राम लाइक नॉर्मल स्कूलिंग ऑफ स्टेट एंड CBSE? यस, जैसा कि मैंने बताया कि स्कूल्स भी क्लास वाइज प्रोग्राम NIS का ले सकते हैं. आपकी स्कूल का आप सेंटर भी ले सकते हो. तो NIS के कुछ एजेंट्स मिल जाएंगे आपको वेबसाइट पर, तो यू कैन अप्लाई योर NIS प्रोग्राम. प्रॉपर एक स्कूलिंग सिस्टम भी आप बना सकते हो NIS के लिए. फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन सोनाली मैम कैन गाइड यू. अगर स्कूल प्रोग्राम कैसे शुरू करना है ना, तो हमारे पास सोनाली मैम है करियर गाइडेंस के लिए, वो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो. ठीक है. तो मूविंग अहेड, जैसा कि मैंने बताया कि सिलेबस इज़ वेरी लाइट. सिलेबस इज़ नॉट दैट मच टफ, क्योंकि CBSE में देखा गया है लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है बच्चों को. हर बच्चा जो है, आउट ऑफ 50 स्टूडेंट ओनली 1 or 2 स्टूडेंट्स आर good enough to understand everything given in the syllabus and they master the syllabus. Remaining 90% students are lagging behind and they don't understand a word in the school. That is why if you want to go a lighter mode for the student, then you can choose NIS. कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन उनका बच्चा बिलो एवरेज होता है या फिर इतना नहीं कर पाता है स्कूल का सिलेबस, तो दे कैन ऑल्सो ऑप्ट NIS बिकॉज द सिलेबस इज इन द लाइटर मोड. सो इसके लिए बच्चे का ग्रोथ भी होता है. वरना कैसा देखा गया CBSE में अगर बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो वो एकदम से पढ़ना बंद कर देता है. तो वो एकदम से पढ़ना बंद ना करे और उसका मेंटल ग्रोथ हो और उसका स्टडीज़ पर फोकस रहे, उसके लिए हम लोग लाइटर मोड ऑफ सिलेबस, दैट मीन्स NIS वी कैन गो फॉर दैट. ठीक है ना. I'll share her number. You can contact her in the last. स्टडी स्ट्रेटजीज फॉर इंडिपेंडेंट लर्नर के लिए जो है कंटेंट एक्विजिशन होता है, एक्टिव एप्लीकेशन होता है, इसमें कंटिन्यूस असेसमेंट भी कर सकते हैं पेरेंट्स. जैसे NIS स्कूल प्रोग्राम की बात कर रहा था, तो उसके अंदर NIS ने कुछ प्रोग्राम दिया हुआ है जिससे हम लोग बच्चों का हर 6 मंथ्स पर एग्ज़ाम लेकर के उसको असेस कर सकते हैं. तो एग्ज़ाम असेसमेंट एंड एग्ज़ाम सिमुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट.
सो बच्चों का कैसा होता है सब्जेक्टिव, आजकल बच्चों को लिखने की आदत नहीं है, देखा ही गया कि बच्चे लिखना प्रेफर नहीं कर रहे हैं आजकल, बिकॉज एवरीथिंग दे आर जस्ट वॉचिंग वीडियोस, तो दैट इज़ अ बैड हैबिट। तो इसके लिए हम लोग को बच्चों को लिखना सिखाना होगा। राइटिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, बिकॉज स्टूडेंट डोंट फोकस ऑन राइटिंग, दैट इज़ वाई इन एग्ज़ाम दे डोंट राइट। तो एग्ज़ाम में लिखना नहीं आएगा तो फिर आगे उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। दैट इज़ वाई हमें उसको, अगर हम लोग होम स्कूलिंग ले भी रहे तो बच्चों को डेली 6 to 7 पेजेस लिखवाना है स्कूल डेज में, मतलब 10th स्टैंडर्ड से पहले पहले। तो these things are very important. All teachers focus, all good teachers tells us to focus on writing skills. बच्चों की राइटिंग स्किल्स है, रीडिंग स्किल्स है, these things should be focused here. Okay, we will arrange one more session like this. ठीक है ना? Yes. सो जैसा कि मैंने बताया, एग्ज़ाम प्रिपरेशन टैक्टिक्स के लिए सिलेबस काफ़ी लाइटर मोड में दिया गया है, और हाई वेटेज जो चैप्टर्स है, जैसे सीबीएसई में नॉट ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, तो हाई वेटेज जो चैप्टर्स है सीबीएसई के अंदर उसको एनआईएस में लेकर के उसके ऊपर फोकस किया गया है, और वो लाइटर मोड में आपको पढ़ाया जा रहा है। मतलब सिलेबस में हर चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है आपको, एनआईएस में सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर जो आपको फ्यूचर में काम आएगा वो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। एंड एनआईएस में सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि डुप्लीकेट एफर्ट को अवॉइड किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल जो चैप्टर हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं वही चैप्टर दोबारा 11th स्टैंडर्ड में आ जाता है। तो ये चीज़ एनआईएस में देखा गया कि एनआईएस में डुप्लीकेट एफर्ट को अवॉइड किया गया है, और आपको एग्जैक्टली वही चीज़ पढ़ाई जाएगी जो ये फ्यूचर में आपको रिक्वायर्ड होगा, जैसे ग्रेजुएशन के टाइम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के टाइम। तो दोज थिंग्स जिससे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा एफर्ट और बार बार वही पढ़ने से वो बच जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखो, इस ग्राफ में मैंने समझाया हूँ, जनरली द एग्ज़ाम्स आर हैपनिंग ऑन मार्च मंथ। तो बच्चे का जो स्ट्रेस होता है वो मार्च मंथ में काफ़ी ज़्यादा पीक पर चला जाता है। सो देर इज़ अ पीक ऑन द मार्च एंड रिमेनिंग डेज स्टूडेंट्स रिलैक्स। यही चीज़ देखा गया है। दिस इज़ द एनुअल कैलेंडर ऑफ नॉर्मल स्कूल। बट एनआईएस में अगर देखा जाएगा कि बच्चा एग्ज़ाम जो देगा वो उसके लिए कई ऑप्शंस दे दिया। जैसे एनआईएस में 10th स्टैंडर्ड में 2 से 3 बार बच्चा साल में एग्ज़ाम दे सकता है। तो और वो एग्ज़ाम का मंथ भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। तो इसके लिए बच्चा अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल इफ़ आई डोंट वांट टू गिव एग्ज़ाम इन द मंथ ऑफ मार्च फॉर सम रीज़न, देन आई कैन गिव द एग्ज़ाम इन द मंथ ऑफ मे ऑल्सो। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू द month of exam, he can choose the date of examination as well. Exams can be scheduled in any month, ठीक है ना, excluding the standard public exam windows. तो कुछ limitations है, जैसे कि कुछ मंथ्स ऐसे हैं जिसमें एनआईएस ने अलाउ नहीं किया है, बट जनरली फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे दिया है एग्ज़ाम डेज को सेलेक्ट करने में। तो स्टूडेंट्स कैन चूज़ द डेज ऑफ द एग्ज़ाम। प्रेफरेबली जो लोग एनडीए देना चाहते हैं, अभी समटाइम्स कैसा होता है, बच्चे एनडीए का जिस दिन बच्चों का एनडीए का एग्ज़ाम होता है उसी दिन समटाइम्स स्कूल के अंदर मतलब 6 मंथ्स का जो एग्ज़ाम होता है वो चल रहा होता है। तो एनडीए सितंबर में होता है फॉर एग्जांपल। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, एनडीए का प्रिपरेशन छोड़ करके स्कूल में कंपल्सन उनको अगर आया ना तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो बच्चों का प्रिपरेशन भी हैम्पर होता है और फिर एनडीए के अटेम्प्ट्स भी उनके जाते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एनडीए साल में 2 बार होता है, एनडीए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जिससे बच्चा आर्मी के अंदर ऑफिसर, आर्मी नेवी एयरफोर्स का ऑफिसर बनता है, उसी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन अनीस क्लासेस में हम लोग करवाते हैं। तो एनडीए का एग्ज़ाम 2 बार होता है साल में, एक अप्रैल मंथ में होता है और एक सितंबर मंथ में होता है। तो जनरली देखा गया है कि अप्रैल मंथ में तो छुट्टियां होती है बोर्ड्स की, सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड। और दूसरी बात ये कि अगर बच्चा अप्रैल के अंदर अटेम्प्ट करता है एनडीए और नहीं पास हुआ तो उसको सितंबर अटेम्प्ट में एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन सितंबर अटेम्प्ट में स्कूल्स के अंदर अगर कुछ एग्ज़ाम एक्टिविटी या फिर इम्पोर्टेंट कुछ अटेंडेंस एक्टिविटी चल रही होती है तो उसका प्रिपरेशन हैम्पर हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा
एनडीए के ऊपर फुल्ली फोकस नहीं कर पाता है. दैट इज ऑल्सो a reason for choosing NIS. Can we directly get admission in any class? Yes, you can directly get an admission. There is a process to follow. आपको स्कूल से LC लेकर के सबमिट करना होगा और उसका पूरा प्रोसेस है, उसको आप फॉलो करेंगे तो NIS में एडमिशन आपको मिल जाएगा. ओके. Okay. यस. मूविंग अहेड, तो लेटेस्ट जो अपडेट है इसके ऊपर, NIS ने सब कुछ डिजिटल कर दिया है. फुल्ली डिजिटलाइज एडमिशन्स आर गोइंग ऑन. फी पेमेंट इज ऑल्सो डिजिटल. डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग इज ऑल्सो डिजिटल. नो ऑफिस विजिट इज रिक्वायर्ड. यू कैन डू इट. यू कैन सिट एट होम एंड गेट द एडमिशन इन NIS. तो ये वेबसाइट है. इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप लोग सारे एडमिशन प्रोसेस को कर सकते हो. NIS पोर्टल. ओके. वर्चुअल ओपनिंग है, डिजिटल लॉकर इंटीग्रेशन है, इंस्टेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, एक्सेस टू मार्क शीट हो जाता है, और इवन इफ योर क्या बोलेंगे, योर डॉक्यूमेंट्स आर डिजिटली स्कैन्ड एंड सबमिटेड ऑन द वेबसाइट. सो नो पेपर वर्क इज रिक्वायर्ड हियर. सब फुल्ली डिजिटलाइज कर दिया है NIS को गवर्नमेंट ने. नेक्स्ट, अनलॉकिंग एलिट करियर ऑप्शंस. जैसे मैंने बताया, हम लोग एनडीए के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं. सो ऑब्वियसली एनडीए पीपल हैव अलाउड फॉर NIS. मैंने जैसा कि बताया, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम NIS के लिए एलिजिबल होता है स्टूडेंट. इफ स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि इफ स्टूडेंट इज चूजिंग NIS then he is not eligible for a particular program for the graduation and post graduation. It is not like that. It is fully eligible. There are very few programs or these thing education options for which NIS is not eligible. बहुत कम ऐसे हैं. आजकल मार्केट में देखो एक नई चीज़ आई है, CUET. डू यू नो व्हाट इज CUET? बट आजकल हम लोग ज़्यादातर नीट और JEE ही जानते हैं. ज़्यादातर बच्चे CET के लिए भी ऑप्ट होते हैं, बट बहुत कम पेरेंट्स को ऐसा पता होता है कि CUET भी एक एग्ज़ाम है जिससे जामिया के अंदर एडमिशन हम ले सकते हैं, और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ जो होती है उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं फॉर डिग्री एडमिशन. तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है. CUET भी अपने बच्चों को दिलाना चाहिए फॉर 11th एंड 12th लेवल, जिससे बच्चा बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जामिया है, क्या बोलते हैं, MU के अंदर एडमिशन ले सकते हैं हम लोग CUET के थ्रू. सो इसके अंदर UPSC सिविल सर्विसेज आर ऑल्सो क्लास 12 NIS सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर UPSC सिविल सर्विसेज लाइक IAS, IFS, IRS. तो अगर बच्चा उसके लिए भी ऑप्ट होता है तो NIS इज कम्प्लीटली फाइन. Even if the student is giving JEE advance and wants to take admission in IITs and NITs, then it is also eligible for him to take NIS completely. No problem at all. ठीक है ना. तो हम लोग ADCI के अंदर NIS की कंप्लीट गाइडेंस के लिए हम लोग रेडी हैं. आप हमें कॉल कर सकते हो. एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आप क्या पूछ रहे हो? मैंने बताया ना, एग्ज़ाम सेंटर का आप सिटी चूज़ कर सकते हो, एंड जो भी उन लोगों का सेंटर होता है उस पर्टिकुलर सिटी में, अकॉर्डिंगली दे अलॉट द स्टूडेंट्स फॉर द एग्ज़ाम सेंटर. तो मैंने बताया कि ADCI अनीस डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट में हम लोग कंप्लीट गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए अवेलेबल है. यू कैन कॉल अस एंड यू कैन हैव अ कंप्लीट गाइडेंस फ्रॉम अस हाउ टू टेक एडमिशन इन NIS और अदर ऑप्शंस एज वेल. अनीस सर खुद करियर गाइडेंस करते हैं, तो इफ़ यू वांट अ करियर गाइडेंस सेशन फ्रॉम अनीस सर, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन. ठीक है ना. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर. एडमिशन, हाँ, हेलो. नहीं सर, वो नहीं है. आपने मतलब कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन सॉरी मैं जरा लेट हो गया था ज्वाइनिंग के लिए. वो जी. उसका प्रोसीजर कैसा है एडमिशन? एडमिशन के लिए सर, हाँ. एडमिशन का प्रोसीजर तो एक तरीका तो सर ये है कि हम लोग थ्रू स्कूल ही एक सेंटर ले लें. जैसे हाँ. मैंने बताया, हमारे रत्नागिरी के मुफ्ती तौफीक साहब ने अभी
रत्नागिरी के अंदर एक एनआईओएस का खुद का सेंटर ले लिया। अभी उनके पास 200 बच्चे हैं जो हिफ्स करते और बेसिक एजुकेशन लेते दीनियात वगैरह की। तो वो लोग हम्म। स्कूल मतलब कंपलसरी अटेंड नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों ने अपना एनआईओएस का एक सेंटर ले लिया स्कूल लेवल पर ही। तो वो ओके। पूरा एनआईओएस का सिलेबस वो घर दिन में 3 घंटा सिर्फ पढ़ाते स्कूल का, रिमेनिंग टाइम उनका हिफ्स और बाकी दीनियात के अंदर जाते हैं। तो स्कूल्स भी खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। और अगर बच्चा होम स्कूलिंग करना चाह रहा है इंडिविजुअल लेवल पर, तो वो एनआईओएस की पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्कूल्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एनआईओएस के एजेंट्स होते हैं वेबसाइट के ऊपर, आप उनको कॉल करके अपने पास बुला करके बात कर सकते हो। और पूरा प्रोसीजर फॉलो होने के बाद आपको स्कूल को एनआईओएस का सेंटर अलॉट कर दिया जाता है। अच्छा ठीक है सर। लेकिन जैसे अगर अगर मुझे एडमिशन लेना है इसके लिए। हाँ, वही इंडिविजुअल लेवल पर अगर सर एडमिशन लेना है ना, तो यू कैन अप्लाई फ्रॉम एनआईओएस पोर्टल वेबसाइट। ओके। तो तो उसके अंदर इसकी जैसे फीस कहाँ आपके तक जाती डॉक्यूमेंट है? सबमिट। हाँ जी सर। फीस कहाँ तक जाती है? क्लास 10th की फीस मैं आपको बताता हूँ। क्लास कौन सी क्लास में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं सर? 10th। तो क्लास 10th के लिए तो फीस अभी मुझे क्लास 10th का तो नहीं पता है, लेकिन क्लास 12th की फीस एक बच्चे की मैं बताता हूँ। वो एक बच्चा था हमारे पास, उसने साइंस के अंदर साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स लिया था। तो क्लास 12 की जो फीस होती है जनरल कैटेगरी के लिए 2200 रुपीज़ उसको हार्डली पड़ा था, मतलब 2-3 हज़ार रुपये के अंदर अंदर हो जाता है। अच्छा। और 12th एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम फीस एक्स्ट्रा होती है, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना, तो वो लोग एग्ज़ाम हाँ। फीस अलग से लेते हैं। हार्डली 300 to 400 रुपीज़ पर सब्जेक्ट होता है उसका फीस। मतलब इफ स्टूडेंट इज सेलेक्टिंग 6 सब्जेक्ट देन 306 आप काउंट कर लो। मतलब 2000 अच्छा। 3000 ऐसा पकड़ लो, 3000 एग्जाम एडमिशन फ़ी है। और हाँ। हार्डली 2 to 3,000 एक्स्ट्रा उसको एग्ज़ाम फीस वगैरह देनी पड़ती है। तो विद इन 10,000 आपका काम हो जाता है इसके अंदर। विद इन 10,000। हाँ, विद इन 10,000। तो दिस इज़ वेरी सूटेबल फॉर हिफ स्टूडेंट। तो जनरली वही वही लेते हैं। तो इसके नहीं लिए एक्चुअली सर देखिए जहीर्स के बच्चों के लिए तो जाहिर सी बात है 101% सही है उनकी जगह। लेकिन जैसा कुछ बच्चे ऐसे जो लोग जैसा सेम लाइक मी कुछ वजह से उनकी पीछे रह गए बैक रह गए वो लोग। जी। तो उनके लिए भी थोड़ा सूटेबल है। हाँ, वही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है। और सिलेबस भी सर बहुत इतना लाइट बनाया ना कि बिलो एवरेज जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है ना। अच्छा। और तो स्कूल्स आजकल तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा अननेसेसरी फीस ले रहे। तो वो हाँ फीस से 10th तो बचने के लिए कंपलसरी हो ये गया अभी। सिस्टम में जा सकते हैं। जी। तो सर इसकी कोचिंग भी देंगे वो? नहीं, कोचिंग आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। मतलब अगर आप स्कूल स्कूल में ऑप्ट कर रहे तो स्कूल की तरफ रहता है कोचिंग। तो बाकी ओके। होम स्कूलिंग अगर ले रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर, तो फिर बोर्ड एनआईओएस बोर्ड की तरफ नहीं होता है ये, मतलब कोचिंग। अच्छा उसकी अलग कोचिंग रहती आपको सेल्फ लेवल पर करना पड़ेगा। तो मतलब वही एक बिगर इशू हो जाता है कि अगर हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर जाते हैं तो बच्चा पूरा ब्लैंक हो जाता है। वो एक डिसएडवांटेज है। इसके लिए अपने को एनआरएस जब चूज़ कर रहे हैं ना, तो घर पर वो एनवायरनमेंट होना चाहिए। घर पर वो मतलब उसको हमें प्रॉपर ट्यूशन लगा के देना पड़ेगा। और आप जानते हो मार्केट में अभी आजकल जूनियर्स के भी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो उसकी भी फ़ीस ज़्यादा नहीं होती, हार्डली 1500 to 2,000 रुपीज़ में एक ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है सर ओके। जी सर। हेलो सर। ऑडियंस में से कुछ क्वेश्चंस आए शायद। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर, बोलिए ना। जी, माशाल्लाह मैं एक दावत इस्लामी के मदरसे में पढ़ाता हूँ। इंग्लिश और हाँ, मैथ्स का माशाल्लाह। टीचर हूँ। तो यहाँ पे जैसे 1 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए। तो यहाँ पे हाँ। पॉलिसी है बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने की भी। तो अपने पास जो बच्चा आता है वो 5वीं क्लास पढ़ के आता है। तो हम्म। 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं तक के बच्चे होते हैं इसके अंदर। हाँ। तो अब इन बच्चों को जैसे कि आप कौन सा बेहतर रहेगा, जैसे मैंने अभी सुना, मैं लेट ज्वाइन हुआ था, कि स्कूल ले लेना या उनका इंडिविजुअल एडमिशन करवाना, कौन सा उनके लिए बेस्ट रहेगा, जिससे कि बच्चे थोड़े के गरीब तबके के भी होते हैं तो उनके लिए भी अच्छा हो और उनको कम मेहनत के अंदर कम पढ़ाई में हो भी जाए उनका। अब देखो कैसा होता है सर, मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद भी टीचर हूँ, आप भी टीचर हो। आप ये बात समझते हो कि
जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के एटलीस्ट 7th स्टैंडर्ड तक उसको स्कूल वाली सोशल लाइफ बहुत ज़रूरी है। जी अगर हम जी। लोग उसको स्कूल ना भेजें, एकदम से उसको स्कूल भेजें ना, तो उसका सोशल ग्रोथ थोड़ा सा हैम्पर होता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप घर पर उसको सोशल ग्रोथ दे पा रहे हो, देन इट इज़ ओके। लेकिन लोअर एज ग्रुप वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा लाइटर मोड में स्कूल जाना ज़रूरी है। सो इसके लिए एनआईओएस में अगर आप स्कूल मोड लेते हो ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसमें बच्चे का अदर देन स्टडीज़ सोशल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, और एडवर्सिटी क्वेश्चन है, वो सब भी देखना होता है हमें बच्चे का। लैंग्वेज है, बात करने का तरीका है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो सब जब बच्चा एक ग्रुप में होता है ना, तो वो डेवलप करता है। तो इसके लिए कभी भी अगर बच्चा 7th स्टैंडर्ड से पहले पहले है ना, तो उसको एनआईओएस स्कूल प्रोग्राम अगर आप लेते हो तो दैट विल बी बेटर। ओके। वैसे यहाँ आफ्टर मैं पढ़ाता 7th, हूँ। क्योंकि बच्चा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, देन यू कैन गो फॉर होम स्कूल। दैट इज माई सजेशन। बट हम्म। एवरी चाइल्ड इज बिल्ड डिफरेंट, एवरी सिचुएशन इज बिल्ड डिफरेंट, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आप चूज कर सकते हो। हाँ, वैसे मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाता हूँ। अपने जो है जी। निसाब यहाँ का, उसके हाँ, अकॉर्डिंग तो पढ़ाते हैं अपन। माशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सर, बोलिए ना। सर, if a student is doing 7th standard in government school, योर वॉइस इज नॉट क्लियर एक्चुअली, आई can't hear you. Can you please write in the chat box if it is possible? NIS एडमिशन परमिशन मतलब यू हेलो कैन ऑल्सो, जैसे कि मैंने बताया कि वेबसाइट पर आप कुछ एजेंट्स मिलते हैं, तो वहाँ हेलो। पर वो, इफ़ योर स्कूल इज, यस मैम। हाँ, फरहाना मैम। हेलो, हेलो। एनी मोर क्वेश्चंस ऑडियंस? तो मैंने नंबर मेंशन कर दिया, यू कैन कॉल अस and get the information related to NIS and other things. हेलो सर। Hello. Sir, I सर, did. Assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum assalam. Sir, I had asked to take the permission for 10th or 12th for grade in under NIOS program. Should CBSE or state syllabus permission is needed for that, or how exactly it is? I want clarification on this. I can't understand your question, but See, CBSE, when I had NIS is been here completely for different board, to, no? pardon? NIS is a completely different program. You don't require any kinds of permission from No. CBSE or anything. Why did this question arise in my mind is here in Bangalore, we have a Malleshwaram as an iOS center. So Yes. I had visited there. So when I visited there, they told me that to give the 10th grade or 12th grade permission, you should have either state syllabus permission or CBSE permission. Either of this, if you have the permission, then we will be giving the NIOS 10th or 11th, 12th. Otherwise, we will be giving the permission only till 8th, they told us. So that is my confusion. So should a school which is already running under the state board or CBSE board only should opt NIOS, or an individually someone can opt like I was running a preschool, now I have increased it for the higher things under NIOS. Now if I want the only NIOS 10th grade permission, so should Hmm. I go for the state or CBSE permission then go for NIOS, or can I get direct NIOS permission? As I told you, these things can be discussed better with Sonali ma'am. So I have mentioned the number. You can personally talk to her, ma'am. Sonali ma'am is a experienced career guidance in Anis classes. So you can directly talk to him, ma'am. Sonali ma'am's number? Uh, Here it is mentioned. You can call on that, and you can say Spell it. them. We have. I want to talk to Sonali ma'am. So then you can
you can have her number. Okay, done. Miss Sonali ma'am is, can you what is her speciality in? She's a experienced career guidance and counselor in ADCI. Okay. So she knows all the rules and everything, so she can guide you completely. Uh, Should we get a separate training after joining NIOS, or do they provide classes for individual? From NIOS board, they don't provide anything. They just give you a platform to give exams and get eligible for the next year career, for graduation careers, and they provide just eligibility. They don't individually provide the classes and teachings. तो वो क्लासेस आपको नहीं मिलेगी एनआईएस बोर्ड की तरफ से. हाँ, अगर इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ स्कूल, देन स्कूल कैन प्रोवाइड यू द क्लासेस. अगर एनआईएस के अंडर आप कोई स्कूल लेते हो तो वो प्रोवाइड कर सकता है, बट एनआईएस बोर्ड कैन नॉट हैव दैट प्रोग्राम येट. ओके काशिफ भाई, इज देयर एनी इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर एनआईएस इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड? NIS training in the sense, which type of training, Kashif bhai? For getting an admission or for getting an exam center? Yes, that is also an option. अगर आप एडमिशन ले लेते हो एनआईएस में, तो you can study at your home. That is what home schooling is. होम स्कूलिंग में कैसे होता है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो. That is also an option in NIOS. Generally other boards don't give this option. That is the advantage of NIOS. आप होम स्कूलिंग बच्चे अलग कर ले सकते हो. और दूसरा तरीका ये है कि आप NIOS के अंडर कोई स्कूल ले लो, तो जो बच्चे बिलो एवरेज होते हैं वो जा सकते हैं इसमें, क्योंकि NIOS के अंदर सिलेबस थोड़ा लाइटर मोड में होता है. तो that is also possible. Schooling is also possible. Home schooling is also possible in NIOS standard, as we are selecting the customized program, the training or particular course. I am saying that if a child wants to study at home, he can also study at home. That option is given by NIOS. And if a child wants to study in school under NIOS, that is also an option in NIOS. So he can also opt for a school and for homeschooling as well. Both options are given in NIOS program. ठीक है अब्रार भाई? Yes, sir. There is one last question. I Yes. think. हाँ अब्रार भाई. I want to be studied by NIOS teacher. So you can have what is your area? In your area you have to look for the NIOS schools, and you can get admission in that particular school. Then you will have a session with your teachers. Okay, Bangalore में आपको बहुत सारे schools मिल जाएंगे NIOS program के अंदर. You can get admission in that particular school. Okay, sir. जी. So if there are no more questions from the audience, we can close. Yes sir. Okay, Jazakumullah khair, Sad bhai. Thanks हाँ a lot jazakallah. to everyone for joining. With this, we close this session. For each of the city, you have to figure out yourself who is providing
education under NIUS. Asa sir lives in Pune. He does not know for all the other cities. So you have to find out locally in your area or in your city. Okay, sir. Thanks a lot. With this, we close this session. Jazakallah. Assalamu alaikum.